Hello students, welcome back in social science class. I Rakesh Kumar, welcome to all of you again in my class. So dear students, today I am going to start Geography, chapter 1st, class 9th, India, size and location. But before going to start, I want to discuss some basic things that is very necessary to understand all the chapters of 9th class geography. So dear students, as you know, the name of the chapter is size and location. So we know India is one of the largest country. Area wise it is 7th largest and population wise it is second after China. So the first thing, where it is located, what is the location of our country India on planet Earth? Dear students, before going to start, generally I want to ask a question to all of you. During this lockdown time, you are staying at your home with your family members. So everyone must know about their home address. अपने घर का पता सबको अभी मालूम है. बट एक जनरल क्वेश्चन है, when a flight takes off from any airport, जब एक जहाज उड़ता है तो उस जहाज के पायलट को जब वो बहुत ज़्यादा हाइट पर पहुंच जाता है तो उसको कैसे पता लगता है अपनी लोकेशन के बारे में. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ प्लेन ड्यूरिंग स्टार्ट्स इट्स फ्लाइट फ्रॉम मुंबई एंड द प्लेन वांट्स टू गो, द पायलट इट्स फाइनल डेस्टिनेशन इज़ न्यूयॉर्क. मुंबई से न्यूयॉर्क जाना है तो फ्लाइट जब इन मोड यानी कि हाइट पर होगी तो पायलट को चारों तरफ रास्ता तो दिखेगा नहीं. हम जब रोड पे चलते हैं, सो देयर आर सम माइलस्टोन्स और सम बोर्ड्स जो डायरेक्शंस को शो करते हैं, डिस्टेंस को शो करते हैं, प्लेस के नेम शो करते हैं. लेकिन पायलट को ऐसे कौन से माइलस्टोन्स ऊपर हवा में दिखाई देते हैं? देयर इज़ नो एनी माइलस्टोन, देयर इज़ नो एनी बोर्ड दैट कैन टेल द लोकेशन, जो उसको बता सके कि न्यूयॉर्क अब इतने 100 किलोमीटर, इतने 1000 किलोमीटर अहेड है, बाकी है. ऐसे ही जब एक बोट किसी ओशन या सी में जब अपने ट्रैवलिंग स्टार्ट करती है, तो जब ओशन में या किसी बहुत बड़े वाटर बॉडी में, सी में जब वो बोट पहुंचती है तो उसको लोकेशन कैसे पता लगती है कि वो किधर से आया है, उसने जाना किधर है. Mainly we know about the directions east, west, north, south and 4 other sub directions: northeast, northwest, southeast, southwest. लेकिन पर्टिकुलर जिस एक पोर्ट पे जाना है, मुंबई टू, अगर हम कहें कि हमने केप टाउन जाना है या फिर जो केप ऑफ गुड होप है साउथ अफ्रीका का जो सदर्न टिप है, वहाँ एक बोट लेकर के जानी है तो पानी में कैसे रास्ता पता लगेगा? सो हाउ द पायलट्स दे गॉट देयर लोकेशंस, उनको अपनी लोकेशंस पता कैसे लगती है? सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू. एक्चुअली जो उनको अपनी लोकेशन पता लगती है, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड बोथ दीज लाइन्स, or we can say the net of latitude and longitude lines. Dear students, this is the 6th class topic, but I think before going to start this chapter, you must know about the importance of latitude and longitude lines. Okay, first of all, this is our planet Earth. So generally on map or globe we see some lines.
So this kind of net of lines we can see on our globe or on the map. First of all, the laying lines, ये जो लेटी हुई लाइनें हैं, the horizontal lines, these are known as latitudes, and these, the vertical lines, these are known as longitudes. So dear student, this is 0 degree equator. Above the equator, actually above means in the north of equator, there are 90 horizontal latitude lines, and the largest one, or we can say the longest one, latitude line is 0 degree equator, and the smallest is just 90 degree north, that is just like a point, that is just like a point. Okay, this is the longest line and this is the smallest latitude line, 90 degree north. The same here, this is 90 degree south. So 90 in the northern hemisphere and 90 in the southern hemisphere. So 90 plus 90, these are total 180, or if we include the equator also in this, 181. Okay, then the total number comes 181. 90 in the northern hemisphere and 90 in the southern hemisphere. So these are the 180 lines. एक क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स कि वाई वी नीड दीज लाइन्स. मैंने अभी आपको बताया कि हमें हमारे घर का एड्रेस पता है. स्कूल से अगर कोई लेटर आपके घर भेजना हो तो आपके प्रॉपर एड्रेस पे चला जाएगा, बिकॉज यू हैव योर हाउस नंबर, स्ट्रीट, योर लोकेलिटी, योर तहसील, तालुका और डिस्ट्रिक्ट, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ पिन कोड नंबर, द 6 डिजिट, जो आपके नज़दीक जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ का पिन कोड नंबर. तो ऐसे ही अर्थ पे जब हमें किसी लोकेशन को सर्च करना होता है, सो दीज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस गिव्स अस द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट. उस पर्टिकुलर शहर की, उस पर्टिकुलर जगह की, या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री की जो लोकेशन है वो हमें इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन से मिलती है. ओके स्टूडेंट्स, अब इनको मार्क कैसे किया जाता है, दैट इज़ फर्दर टॉपिक. So that is I am not going to discuss with you here because this is not in our syllabus, but I am discussing only some basic things. Okay, वो एक angular distance होता है. Actually what is the latitude? The angular distance measured in the north and in the south of equator. अगर हम यहाँ से अर्थ को कट करें इक्वेटर से और मैं 1 डिग्री कंपास रख के 1 डिग्री का एंगल लगाऊं, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री का जो एंगल आएगा डियर स्टूडेंट्स, तो टोटल कितनी लैटिट्यूड लाइंस मैं लगा सकता हूं? नियरली 90 इन द नॉर्दर्न साइड एंड सेम 90 इन द सदर्न साइड. ओके, द सेम हियर अगेन लॉन्गिट्यूड लाइंस. नाउ डियर स्टूडेंट्स, longitude lines, for example, if you know about the model of earth, that is globe, so we see these lines comes from the north point and they ends here at the southern point, or we can say they starts from the southern point and they ends here on the northern pole. Okay, so these are the semicircles. Latitudes are the complete circle. They are the
कंप्लीट सर्कल, लैटिट्यूड्स कंप्लीट सर्कल हैं और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं दे आर रनिंग बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो दीज आर द सेमी सर्कल्स। अब डियर स्टूडेंट्स अज्यूम करेंगे दिस इज लाइक ए बॉल और ए ग्लोब, दिस इज द नॉर्दर्न पॉइंट। मुझे साउथ जो पोल है वहाँ जाना है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाने के लिए मैं अगर एक डिग्री के इंटरवल पे रोड्स निकालता हूँ तो कितनी रोड्स या कितने रास्ते मैं ड्रॉ कर सकता हूँ? 360। यहाँ से मुझे अगर साउथ पोल पे जाना है और एक डिग्री के इंटरवल पे अगर मैं लाइंस ड्रॉ करूँगा तो कितनी लाइंस ड्रॉ करूँगा? यू कैन सी दीज फिंगर्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। हाउ मेनी एंगल्स इन ए सर्कल? 360. So these are the 360. But further we divide these in eastern hemisphere and western hemisphere. So dear students, as we mark this latitude line as 0 degree equator, so we also take one longitude as a 0 degree longitude line, and you know this is known as 0 degree prime meridian. 0 degree prime meridian. Okay, 0 degree prime meridian, it passes through London, and there is a place known as Greenwich in London. That's why it is known as the Greenwich meridian. Okay, it passes through the Greenwich, and from here in the right hand side, in the eastern side, the longitudes that lies here in the eastern side they known as the eastern longitudes, and the latitudes that lies in the west of this 0 degree longitude line they known as the western longitudes. And these longitudes divides our earth in two hemisphere. This is eastern hemisphere and this half one is the western hemisphere. This is western hemisphere. Hemisphere means गोले का आधा. एक सेब है. Now this time watermelon is available in the market. वाटरमेलन के ऊपर भी आप देखते हैं सेम लाइंस इस तरह की हैं. उस वाटरमेलन को लो और अगर आप उसको बिल्कुल वर्टिकली कट करते हो तो दो पार्ट होंगे, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर. सेम वाटरमेलन को यदि आप हॉरिजॉन्टली बीच में से कट करते हैं तो अगर हम यहाँ बीच में से कट करते हैं अर्थ को, द लैटिट्यूड्स डिवाइड्स आर अर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज सदर्न hemisphere. Because of these latitude lines it is known as the southern hemisphere. Because of these latitudes it is known as the northern hemisphere. Because of these longitude lines it is known as the western hemisphere, and because of these latitude lines it is known as the eastern hemisphere. Hemisphere means गोले का आधा, यानी कि अर्थ जो एक गोला है. क्लियर? So these are 180 in the eastern hemisphere and 180 in the western hemisphere. 180 plus 180 is equal to, they are equal to 360 longitude lines. So dear students, 180 are the latitude lines and 360 are the longitude lines. 180 latitudes. द वेरी सिंपल फार्मूला, दोज हु आर इन द लेइंग कंडीशन, जो लेटी हुई लाइनें हैं उनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं और जो खड़ी हुई लाइनें हैं हम उनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं. जब आप दिन में खड़े हैं यू आर इन द लॉन्गिट्यूड पोजीशन, और जब आप रात को सो जाते हैं दैट इज लैटिट्यूड पोजीशन. क्लियर? अब ये बात आती है कि इनकी इम्पोर्टेंस और क्या है. व्हाट आर अदर further importance of these latitudes and longitude lines? Actually dear students, latitude lines, अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ important latitude lines मार्क करता हूँ. This is 0 degree equator and here 23.5 degree north latitude line, and same here 23.5 degree north south latitude line. It is known as the Tropic of
Cancer, this line, and here this line, it is known as the Tropic of Capricorn. इसको हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं और इसको हिंदी में मकर रेखा बोलते हैं। हमारी जो 12 राशियां हैं जोडाइक्स, उनके नाम पे ये रखे गए हैं, ठीक है। अब अगेन जो फर्दर हमारी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस आती हैं, दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड हेयर अगेन 66.5 डिग्री साउथ. It is known as Arctic Circle. This latitude line is known as the Arctic Circle. Here Arctic Ocean is located. That's why it is known as the Arctic Circle. In the south, which physical feature is located here? Antarctica continent. That's why it is known as the Antarctic Circle. Okay, dear students. So, what is the importance these some latitude lines? And these are also important. The 90 degree south, it is known as the South Pole, and 90 degree north, it is known as the North Pole. सिरा, ध्रुव, जिसको हम कह देते हैं. Now, dear students, this line, this and this, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? Actually, the area between Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn, this area, it is known as the tropical, equatorial, और इसके साथ साथ टॉरिड जोन. इसको हम 3 नाम दे सकते हैं: ट्रॉपिकल जोन, इक्वेटोरियल जोन एंड टॉरिड जोन. एंड नाउ द एरिया between Tropic of Cancer to Tropic of Arctic Circle, between Tropic of Cancer to Arctic Circle, this area is known as North Temperate Zone, and from here to same here, this is known as the South Temperate Zone. Now from here to here, Arctic Circle to 90 degree north, this zone is known as Frigid Zone, North Frigid Zone, and this from here to here, it is known as the South Frigid Zone. Now, what are the characteristics of all these zones? These zones decides the different heat zones over the earth. अब होता क्या है dear students? For assumption, this is sun. Now, throughout the year, the direct sunlight of sun, it falls between this region. जो सन की डायरेक्ट लाइट है वो पूरा साल इस रीजन के बीच में पड़ती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल और टॉरिड जोन. नाउ द स्लांटिंग सनरेज तो सीधी होंगी, बट ड्यू टू द कर्वेचर शेप ऑफ द अर्थ, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पोजिशन और इन ए स्ट्रेट लाइन. बट ड्यू टू द कर्वेचर शेप ऑफ द अर्थ, कर्वेचर यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर जो सन की लाइट रिसीव होती है फिर भी लगभग ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में स्ट्रेट जो सन रेज हैं वो रिसीव होती हैं. बट हेयर व्हाट हैपन्स, यहाँ पर आकर के सन की एक रे को बहुत बड़ा एरिया कवर करना पड़ता है ड्यू टू द कर्वेचर शेप ऑफ द अर्थ. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द
north temperate zone and this is known as the south temperate zone. Now in the north of this Arctic circle and in the south of this Antarctic circle, सन की जो रेज हैं वो बहुत ऑब्लिक मीन्स स्लांटिंग यानी तिरछी सनलाइट रिसीव होती है और इसीलिए ये जो एरिया है, दिस एरिया रिसीव्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड दिस जोन, ये जो हमारा फ्रिजिड नॉर्थ फ्रिजिड जोन है और ये जो साउथ फ्रिजिड जोन है, यू नो द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट. अगर यहाँ 6 मंथ डे है तो उसी टाइम पे यहाँ क्या है 6 मंथ नाइट, 6 month day 6 month night, or if here is 6 month day then here is 6 month night. ठीक है. Now this is about the important latitude lines. Actually these latitude lines divides the different heat zones over the earth. Equatorial zone, torrid zone, tropical zone. This is north temperate zone, this is frigid zone. The characteristics, frigid zone always remains frozen, बर्फ़ से जमा रहते हैं, आर्कटिक ओशन भी और एंटार्क्टिक जो कॉन्टिनेंट है वो भी. एंड दिस जोन, यहाँ पर क्या है, सारा साल गर्मी रहती है, मीन्स द समर सीजन, दे एन्जॉयज द समर सीजन थ्रू आउट द ईयर. ओके, नेवर विंटर कम्स हेयर इन दिस रीजन. दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस रीजन. यहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट रिसीव होती है थ्रू आउट द ईयर, दैट्स वाई. दिस जोन हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज टू बोथ जोन्स. यहाँ पे गर्मी और सर्दी जो है टेम्परेट जोन में वो माइल्ड टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी, माइल्ड टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो लगभग यहाँ पर कुछ पड़ती हैं टेम्परेट जोन में. Okay dear students, so this is about the latitude lines. Now one more thing, आप कहोगे कि सर why it is 66.5, ये 66.5 क्यों है, 66 क्यों नहीं है, 67 भी ले सकते, 66 भी ले सकते थे. Why we have taken this 66.5 degree line? Actually dear students, as I draw this roughly shape of the earth here, so this is not the actual location of our earth in the solar system. We know the north pole is here and south pole is here. Our earth is tilted nearly on 66. In some books it is written 66 and in some books it is written 23.5 degree angle. Means this is our earth, this is north pole, this is south pole and this is the axis. आप ग्लोब कभी भी चेक कर लेना डियर स्टूडेंट्स, उसका जो एक पिन है वो यहाँ होगा और दूसरा पिन यहाँ होगा और ये जो इन दोनों को पोल्स को मिलाती है दैट इज़ नोन एज द एक्सिस ऑन विच आर अर्थ इज़ रोटेटिंग. अब हम इसका अगर एंगल निकालने की कोशिश करें दैट इज़ 66.5. बट जो मोस्टली हम देखते हैं, जो ड्रॉ करते हैं, उसमें है क्या, नॉर्थ पोल वी शोज हेयर एंड साउथ पोल वी शोज हेयर. सो देयर इज़ ए गैप. दिस गैप इज़ 23.5 एंड फ्रॉम हेयर द एंगल इज़ 66.5 डिग्री. इसीलिए कुछ बुक्स में जो लिखा है टिल्टेशन जो एंगल है अर्थ का वो 23.5 डिग्री दिया हुआ है और कुछ बुक्स में जो है वो 66.5 डिग्री दिया है. क्लियर? Now let's see the importance of longitude lines. So the latitude lines, they tells us about the different heat zones. And what about the longitude lines? There are two important longitude lines. One is 0 degree prime meridian and second is 180 degree. It is known as the international date line. These longitude lines, they gives us the concept of time and date. Dear students, when date change in our calendar, हमारे कैलेंडर में डेट कब चेंज होती है, जब रात को घड़ी में
0 0 0 0, जब ये टाइम आता है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट डेज के जो टाइमिंग है, जो आवर्स हैं, मिनट्स हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं और हमारी डेट जो है कैलेंडर में वो चेंज हो जाती है। नाउ दीज टू इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड लाइन्स प्ले देयर इम्पोर्टेंट रोल। दे गिव्स अस कंसेप्ट ऑफ डेट एंड टाइम। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, अब पहले देखेंगे कि डेट्स का कंसेप्ट कैसे देती है, टाइम का कंसेप्ट कैसे देती है हमें। डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी आवर्स इन ए डे? 24 आवर्स। हमारे पास 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात है। 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट। अब ये जो 24 आवर्स हैं हमारी क्लॉक में, ये क्यों हुए? वाई? रीज़न, टोटल हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड लाइन्स? 360 total longitude lines. And dear student, our earth rotates in solar system on its axis from west to east like this. This is west and this is east. हमारी जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम में वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ओके, the two kinds of the motion that our earth done in the solar system, rotation on its axis। आप कभी क्या करते हैं कि एक बुक रख के अपने उंगली के ऊपर घुमाते हैं, या आपने देखा हो कुछ स्पोर्ट्स पर्सन जो है फुटबॉल को या फिर बास्केटबॉल को फिंगर के ऊपर उसको बैलेंस करके उसको टर्न करते हैं, घुमाते हैं उसको। तो ऐसे ही हमारी अर्थ जो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, दैट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एंड we know there are total 360 longitude lines. So when our earth rotates, जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो सामने से जो सन की लाइट जो उसको रिसीव होती है, वन लॉन्गिट्यूड टू नेक्स्ट, एक लॉन्गिट्यूड को फिर आगे नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इस तरह करके एक एक लॉन्गिट्यूड को सन के सामने आने में 4 मिनट्स का टाइम लगता है। हाउ मच टाइम इट टेक्स? 4 मिनट्स। सो 360 मल्टीप्लाई बाय 4 मिनट, कितना आ गया? 1440 मिनट। नाउ इफ वी वांट टू कन्वर्ट इन आवर्स, डिवाइडेड बाय 60 मिनट मीन्स 24 आवर्स। इसलिए हमारी घड़ी में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड टू नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड लाइन, सन की लाइट्स को या सन के सामने आने में एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड को नियरली 4 मिनट्स का टाइम लगता है। दैट्स वाई टोटल 360 लॉन्गिट्यूड लाइंस। हम मान लेते हैं दिस इज़ 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। अब 0 डिग्री के बाद अगली 1 2 3 इस तरह से जो नेक्स्ट 1 बाय 1 जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं उनको सन के सामने आने में कितना टाइम लगेगा, और दोबारा से जब ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन दोबारा फिर सन के सामने आएगी तो कितना टाइम लेगी? 24 आवर्स। 360 मल्टीप्लाई बाय 4, 1440 मिनट्स। इफ वी कन्वर्ट them into the hours, then 24 hours come. Okay dear students, so they gives us the concept of time. Now international dateline. International dateline, it is known as the 180 degree longitude line. 180 degree longitude line, it passes nearly in the mid of the Pacific Ocean, but in north or some in south in Pacific Ocean you can see it moves in a zigzag form. In water it is moving in a straight line, in a straight form, but where the islands or some land mass comes, it takes zigzag shape. ये थोड़ी तिरछी हो जाती है। अब ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये हमें क्या बताती है? फॉर एग्जाम्पल, जब इंटरनेशनल डेट लाइन, सिंपल सा क्वेश्चन जो आपने अपनी लाइफ में सुना होगा, विच कंट्री इज़ नोन एज द सनराइज कंट्री? जापान। जापान इज़ नोन एज द सनराइज कंट्री। जापान, क्योंकि इफ़ वी टेक दिस लॉन्गिट्यूड लाइन एज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अगर हम इस लॉन्गिट्यूड लाइन को 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन माने जो पैसिफिक ओशन के बीचों बीच क्रॉस करती है, तो उसके तुरंत इधर यहाँ एक कंट्री आता है छोटा सा,
दैट इज जापान। और जब सन के सामने इस लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करके सबसे पहले कौन सा कंट्री आएगा? जापान। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द सनराइज कंट्री। और यहाँ पे अब मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। नाउ द मॉर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड डे नेक्स्ट डे आल्सो स्टार्ट्स। रात को 12 बजे के बाद क्या हो जाता है? नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह से जब ये लगभग 180 लॉन्गिट्यूड लाइंस सन के सामने आ जाती हैं तो हमारे पास कितना टाइम हो जाता है? 12 आवर्स। यानी कि जब यहाँ रात के 12 बजे थे तो फिर ठीक 12 घंटे के बाद जो बैक साइड में जब हम जाते हैं तो आफ्टर 12 आवर्स, और फिर उसके बाद दोबारा फिर 12 आवर्स यहाँ पे। तो जो ईस्टर्न यहाँ से इफ़ इट इज़ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, नॉट 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। जो ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, अब इससे इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और इससे इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। अगर आप यहाँ से इधर मूव करते हैं, जो भी प्लेन्स और शिप्स, दोज हु मूव्स फ्रॉम ईस्टर्न हेमिस्फीयर टू वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, सो दे हैव टू चेंज देयर डेट इन देयर कैलेंडर। जब यहाँ से शिप्स वापस जाते हैं तो वो एक डेट बैक जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ डेट कब चेंज होती है? रात को 12 बजे जब हम सोते हैं। मॉर्निंग टाइम मीन्स सनराइज टाइम। मॉर्निंग टाइम मीन्स सनराइज टाइम। अब सनराइज कब होता है? जब सुबह लगभग 5 या 6 बजे के आसपास इन द मॉर्निंग टाइम वी फेस द सन। लेकिन जो डेट है वो चेंज कब हो जाती है? रात को 12 बजे। अब जो रात को 12 बजे डेट चेंज हुई, दोपहर तक आते आते नून टाइम, और नून टाइम के आफ्टर 12 आवर्स, उसके फिर 12 घंटे के बाद जब दोबारा रात आएगी तो क्या हो जाएगी? डेट चेंज हो जाएगी। अगर हम डे यहाँ से स्टार्ट करते हैं 12 o'clock, रात के अगर 00:00 यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से डे स्टार्ट हो गया है नेक्स्ट। लेकिन अभी यहाँ पे जो डे है वो पिछला डे चल रहा है। इफ़ टुडे, फॉर एग्जांपल, टुडे इज़ 23 मई, आज रात 12 बजे से यहाँ से 23 मई डेट स्टार्ट हो गई 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन से। लेकिन इससे इधर अभी भी क्या है? 22 मई। Those who cross this 180 degree longitude line, they have to change the date in their calendar. If they coming from western to eastern hemisphere, then they come one day in advance, and those if they move from eastern hemisphere to western hemisphere, so they go one date back. Okay students, so this is about the concept of date that gives us by the 180 degree international date line. Okay, so this is about the importance of latitudes and longitudes. अब एक और क्वेश्चन आता है कि इनसे जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि हाउ द पायलट्स दे नो अबाउट देयर लोकेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, वी गिव पर्टिकुलर नंबर टू ऑल दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. अब लैटिट्यूड्स टोटल कितनी है? 180 एंड लॉन्गिट्यूड्स 360. अब मान लीजिए दिस इज द ग्रेटिक्यूल. ग्रेटिक्यूल मीन्स द नेट ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स. दिस इज 1 डिग्री, हम इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर की मान लेते हैं. 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, 4 डिग्री वेस्ट, 5 डिग्री वेस्ट, 6 डिग्री वेस्ट. सेम हेयर, अगर ये इक्वेटर से ऊपर है देन दे आर इन द नदर्न हेमिस्फीयर. 11 डिग्री नॉर्थ, 12 डिग्री नॉर्थ, 13 डिग्री नॉर्थ, 14 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री नॉर्थ, 16 डिग्री नॉर्थ. अब हमें किसी एक पॉइंट की लोकेशन निकालनी है. फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट इज लोकेटेड हेयर, तो इसकी क्या लोकेशन होगी अर्थ के ऊपर? व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट ऑन द अर्थ? सो द एड्रेस इज 3 डिग्री वेस्ट. तो हम इसका एड्रेस क्या लिखेंगे? ऑन विच लॉन्गिट्यूड इट इज लोकेटेड? 3 डिग्री वेस्ट, दैट इज
longitudinal address 3 degree west and latitudinal address on which latitude line it is located? 13 degree north. So this is the address of this point. One more question, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं. If any place is located here, तो ये कहाँ पे आएगा? On which latitude? So dear students, between two longitudes and two latitudes जो space है, हम इसको convert करते हैं 60 minutes में. हम इसको डिवाइड करते हैं 60 मिनट्स. हम जो 60 मिनट्स की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट अबाउट द क्लॉक 60 मिनट्स की जो घड़ी में 60 मिनट होते हैं, ठीक है. मैं यहाँ एरिया की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया. इस एरिया के हम कितने पार्ट्स करेंगे? 60. और ऐसे ही इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में हम कितने करेंगे? 60 लैटिट्यूड्स और आ सकती हैं. नाउ बिटवीन दीज टू लैटिट्यूड लाइंस, ये जो 1 by 1 मिनट है, इसको भी आगे हम फर्दर डिवाइड करते हैं इन सेकेंड्स. अगेन 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड. अब कोई भी पॉइंट जो यहाँ लोकेटेड है, तो हम देखते हैं कि वो कौन सी डिग्री लैटिट्यूड पे लोकेटेड है. उसकी लैटिट्यूडनल लोकेशन क्या होगी? वी नो द लैटिट्यूड्स आर गोइंग upside, they are increasing towards northern side. It means they are the northern latitudes. 14 degree north. अब यहाँ पे इसके बीचों बीच कौन सी होगी? 40 degree 30 minute. And if it is some upside, a little bit upside or little bit in the north of this 30 degree, तो हम इसको अज्यूम करते हैं, कितना मानते हैं? नियरली 40. तो हम क्या लिखेंगे? द लैटिट्यूडनल लोकेशन इज 14 डिग्री एंड 40 मिनट. और अगर इसको आगे हम सेकंड्स में लेते हैं, मान लीजिए ये होगा आगे 20 सेकेंड. दिस इज द सिंबल ऑफ सेकेंड. दिस इज डिग्री, दिस इज मिनट एंड दिस इज सेकेंड. अब सेम इन द लॉन्गिट्यूड वाइज, on which longitude it is nearly in the mid. So this is 3 degree and this is 4 degree. 3 degree to 4 degree की तरफ हम मूव करें. So 3 degree and 30 minute. सेकेंड्स में भी हम लिख सकते हैं. अगर इसमें सेकेंड आप ऐड करना चाहो, so हो सकता है 10 सेकेंड. So this is the address of this point over the earth. So the pilots, they fix this address in their system, and automatically the plane, the system tells them about this location. इसीलिए जो फ्लाइट है वो ऑटो मोड पे हम देखते हैं, पायलट्स उनको कर देते हैं. ऑटो मोड मीन्स कि जो लोकेशन है वो जो प्लेन है वो अपनी तरफ अपने आप उस लोकेशन की तरफ मूव करता है. ओके. सो हम आज के टाइम पे वी आर यूजिंग द मोबाइल फ़ोन. हमारे मोबाइल फ़ोन में GPS हम यूज़ करते हैं. GPS मीन्स द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. अर्थ पे हम किस जगह खड़े हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस टाइम आई एम स्टैंडिंग, सो व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओवर द अर्थ. सो दैट इज टेल अस बाय द दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स. ओके डियर स्टूडेंट्स. सो ऐसे ही अब फिर बात आती है कि इंडिया का जो साइज़ है वो कितना है. इंडिया की लोकेशन किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड और किन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आती है. दैट वी विल डिस्कस इन सेकेंड पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग this topic, regarding latitudes, longitudes, so you can ask or you can leave the message in the groups that we have made for you. Okay students, then do the practice and must learn all these things because these are the basic points. Okay, so till then, see you, goodbye.